that, as I said, is baking science and technology. And moving towards the presentation reporting. Yes. There is a button, on off button. So that's why I want to know what the problem. So beginning, Movement. beginning, just that's fine. The topic that we are going to discuss today in our class is the introduction to baking sciences, baking science and technology, which is actually a subclass of food science and technology. It is a core course, and most of the times we have to deal with in our daily routine with baking courses and baking sciences. So, how many of you have visited any bakery? Almost all of us. And we used to take most of the time. We used to take bread, cookies, tarts, biscuits, whatever crackers, especially, and now pies as also has been introduced in our city. So, have you ever visited a baking kitchen No. At home, yes. at home? And how many of you have done baking at home? So, these are Oh, you must be very familiar with the pizza. That's good. That's an encouraging thing. I must appreciate you. If you are going towards baking science and technology, you must be well aware that the exact recipe and the ingredients are the most important parameters for having a beautiful and delicious end product. And for that, this course has been designed in order to meet the requirements and giving you the best of that knowledge so that you can incorporate that not only on the household level, but you can start your own startups and business. So basically, it's a way to give you an entrepreneurship point. So baking is the cooking of food by dry heat in an oven in which the action of the dry convection heat is modified by steams. It's a very general scientific word, but the point and the concept behind this is that the heating process is given and proper moisture is being created in that so that a product can be baked at desired temperature and level with the desired quality standards, meeting the parameters of the consumer end. It is primarily used for the preparation of bread, cakes, pastries, pies, tarts, cookies and crackers. So here are some of the bakery products. I hope you must be familiarized with these things. We have crackers, we have cupcakes, breads, quiches. This one is the quich. You have brought some with you? I have nothing, but I can offer you some biscuits as well. Top one. Okay, that's fine. Well, this one is the quiches. This one is the new thing that I want to introduce with you. It's a small pizza sort of thing, and we call it as pizza. But you can modify and customize it according to your need. You can make it sweet, you can make it salty, you can make it spicy as well. It's up to you. Well, moving on. It is basically the science needed to understand what goes on inside a biscuit when it is baked and a cake batter when it's being whipped. Well, batter is basically the mixer that we use to mix and with the shear mixing or by manual mixing during the preparation. Like kneading, you can say kneading as well. And it is a technology as well in which different techniques are involved to produce baked products. So baking science and technology is the application of science to the industrial and commercial baked products. I will give you a brief history on it, that from where it has been originating, because moving towards the recent trend, it's important to understand the history. Well, it's have the roots in the Roman Empire, moving on towards the 300 BC. Pastry become an occupation for Romans to earn their livings. Around 180, there are some more than 300 pastry chefs in Rome alone. That's why Italy is being known as the house of baking as well, and the French as well. And then around 2500 BC, record shows that the Egyptians already had the bread. I mean, they have the roots of the breads moved towards the Egyptians. That's why Egyptian breads are very common in the Gulf countries and on the North American and South Americans as well.
So why it is important? Why it is important to talk? Why it is important to have the lecture on the important baking sciences? It is one of the primary ways in which we cook food. घर में रोजी रोटी खानी है अगर हम सबको आ जाए तो मुश्किल बहुत सारे खा सकते हैं important where dry heat is required to cook the food in our household purposes we have dry heat basically we don't have the access towards the moist heat for that we need specialized and customized ovens that are not possible at home levels but if you are having your own cookery like your own baking ovens specialized for the some moist heat it will be an expensive one that will be meant to the business. So for quality baked foods, utmost care is given to the regulation of temperature and humidity. We have discussed that in the previous slide as well. The temperature and humidity are the utmost parameters that have to be followed. So there are different bakery products, an important part of the balanced diet. A wide variety of such products can be found on the supermarket shelves. Some of these products are used as snacks. Bread is widely being used as the bakery products. I mean, in weekend most of the time we have used to have sandwiches. So there are some other bakery products that we have introduced, and the major bakery products include bread, cake, biscuits, cookies, pastries, pizza, donuts. So main ingredients in baking include the cereal flour. This one, the central one, is the cereal flour. I mean, you can have 7 major cereals. Out of that, we used to have wheat flour. It can be whole wheat flour or the straight wheat flour. This is maida we get. We can have rice flour, we can have millet, barley flour as well. So it depends upon your nutrition. But nowadays, the nutritionists as well as the food scientists, they are asking people to use multi-grain flours. You should have customized flours to have the better nutrition. So we have the main ingredient of the flour, then we have the eggs, salt, sugar, milk, oil, which is also known as the tempering, and then we also have yeast and baking powder as well for that. So they are being used according to the recipes, and they have to make. One thing that is most important to discuss over here is that in our recipe, we used to say recipe as a pyramid of the cards. If one thing, like if there is one thing is being disturbed in that particular pyramid, your whole recipe and the end product will be collapsed. Like this, if you have a pyramid like this, it's all made of cards. If any of that is skipped out of its place, the whole pyramid will be out of that. So the end quality will not be user friendly, it will be disturbed, and you will not get the required amount that you are expecting. And if you are doing this at home, you know the consequences. So accurate measurements in baking is important, that we have discussed in this figure. It is a matter of chemistry. Proportion ratios of liquid, flour and fat will make or break the baked items. And all the added ingredients should be in the defined proportions. So you must have stick to your exact recipe. So in consumer sciences, there are sensitive preferences. Every consumer has its own preferences. I mean, if I am liking a bread, you can reject that. It's not up to my mark. So you have to keep the basic standards in your mind before making the end product. So for that, sensitive preferences are very important. That's our 5 sensibilities we have. Adding value to the product by keeping that standards in mind. Packaging should be very attractive. Nowadays, you can have a number of products, and most of the consumers are, most of the suppliers and manufacturers are earning most of the profit out of that due to packaging. Good packaging can earn double of the amount of the basic product. So food labels should be mentioned in the nutrition facts, ingredient list, health claims. Product standards should be maintained, and consumer rights should be validated. If they are not validated, anybody can go to the consumer courts and you have to see the consequences of that. So it is a maths, determine the temperature of the liquid, batter, doneness of the products, and storage. Weigh and measure ingredients, do batter, calculate the yield, net weight, nutrition facts label. If you are having a small enterprise, you have to stick to these maths calculations as well. If you are not getting that right way, you will have to have more than the investment losses. You will be in a deficit. So in order to meet the deficits, you should be very much clear about the actual calculations. So product cost and product price points are very important. Time use efficiency, consumer products, acceptance service should be done. So building baking as a career, you must have working competency should be delivered to the workers. That's the basic course of the
basic core agenda of this course. Project time management should be there. I mean, problem solving creativity should be known. Visualization, communication, reading comprehension, applications, team building, cultural society, diversity, technical skills, computer equipments. All these are being the part of this course. You can have a basic understanding of this course by following. So learn food handling, food storage and safety, which have been the major problems that have been addressed over there over the years, and they have been part of our instinct now that everyone is conscious about that. Food should be the required quality and it should be safe as well. So marketing skills, the management guys can give a better understanding of that. So in order to meet the consumer preferences, management skills should be there in that particular food scientist. And thank you very much for this presentation. If there is any question, यीस्ट का कोई अल्टरनेटिव है या ये हमें पाकिस्तान के नेम से मिलता है क्या? so yeast आपको मार्केट में there are many companies that are manufacturing it. Like AB Mauri is the most modern one. AB Mauri जो है इस वक्त हमारा सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं, सप्लायर भी कह सकते हैं दे रहा है. उसके अलावा आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रेड आपके लिए यीस्ट बहुत ज़रूरी है. So yeast is the cheapest, easiest and the safest source to be utilized under the justifiable amounts. क्योंकि यीस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो कहते हैं इसमें चीनी डालें, इसको रखें और ये नहीं, वो ऐसे होता है जब आप उसकी रेसिपी फॉलो करते हैं तो यीस्ट की जो डाइट है ना वो शुगर है, और यीस्ट को प्रोडक्टिव डिजीज ने रोकना है वो साल्ट है. अगर आपने चीनी डाल दी है, यीस्ट ने वो चीनी खा ली है, उससे प्रोपागेट करना शुरू कर दिया, उसने रिक्वायर्ड अमाउंट में अपना गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बेसिक गैस होती है जो आपको लो वॉल्यूम देता है बेसिकली, अगर वो लो वॉल्यूम क्रिएट हो गया, लेकिन अगर आप उसको नहीं रोकते उसकी एक्टिविटी से तो आपका वहाँ पर उसका फटना शुरू हो जाएगी ब्रेड, आप उसको बेक ही नहीं कर सकते. उस एक्टिविटी को रोकने के लिए आप साल्ट डालते हैं. अगर आप चीनी डाल दें 10 ग्राम एक पूरी 100 ग्राम के पेड़े के अंदर, साल्ट आप डालेंगे एक चुटकी भर, उसके लिए काफ़ी है. उसकी एक्टिविटीज़ को सीज डाउन करने के लिए यू हैव टू ऐड साल्ट. चीनी उसकी खुराक है जो देनी पड़ती है. अगर हम साल्ट ऐड नहीं करते तो सर उसकी क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते क्योंकि हैं, वो बनेगी नहीं. वो ऐसे होगा कि एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ती जाएगी, उसका जो लो वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा. अक्सर आप ब्रेड लेके आते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर कोई रॉ आदमी होगा कि नई बेकरी से लेंगे तो आप कुछ दिनों पहले ना शुरू में उसकी क्वालिटी डिफेक्ट्स फील होंगे. लाइक उसका जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड बेसिकली ऐसे होती है आपके पास, अगर आप देखें तो ये एक ब्रेड का लोफ है जिसे हम ऐसे बना हुआ है, ठीक है. आपको यहाँ से उसका ये होता है इंटरनल, कहते हैं इसे क्रम. ये होता है हमारा क्रस्ट जो थोड़ा सा सख्त होता है, ये होता है नरम. आप देखेंगे उसका क्रम जो है ना वो फटा हुआ होता है, या वो ओवर बेकिंग होगी या लो वॉल्यूम का साइज बढ़ने की वजह से एक्टिविटी इतनी होगी थी कि अंदर वाला पोर्शन उसका वो अपनी एग्जैक्ट क्वालिटी लेवल पे नहीं है. जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि यीस्ट का काम होता है, यीस्ट क्या करता है, यीस्ट बेसिकली एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, वो ट्रांजिशनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है. वो उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर उसको मॉइस्चर देता है जो एट द एंड बेकिंग के दौरान जब आप उसको एक टेम्परेचर देते हैं खत्म होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है और बनने के बाद जब वो इवेपोरेट होती है तो वो जब उस लोफ में से गुजरती है तो आपने अक्सर देखा हो जब आप ब्रेड को स्लाइस करते हैं उसमें सुराख बनने से छोटे तो पोर्स, वो गैस के पैसेज होते हैं जो उसको स्पॉन्जी स्ट्रक्चर देके सॉफ्ट फॉर्म देते हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल टेम्परेचर. ये उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, इसलिए जरूरी. यानी कि आप कहते हैं कि अगर एथेनॉल डाला जाए किसी नहीं, चीज़ में, एथेनॉल नहीं डाला. मैंने ये कतई नहीं कहा. आप कहते हैं एथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है ना. नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा कि एथेनॉल डालना चाहिए. मैंने कहा है कि इट्स अ ट्रांजिशनल प्रोडक्ट. जैसे कि आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान बहुत से ट्रांजिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उन्हें निकाल नहीं सकते, बट दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन. उसमें प्रोड्यूस होती है, वो रिमूव हो जाती है और फॉरन कन्वर्ट होती है. इट्स अ मैटर ऑफ नैनो सेकंड्स. हमें नैनो सेकंड ऐसी है जैसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कैटलिस्ट एग्जैक्टली और दूसरा इनहिबिटर है. Exactly. नाम करते हैं. यू कैन से इन दैट वे एज वेल. क्योंकि जब मैं बाहर था जी जी. वहाँ पे एक छोटा सा साशा मिलता होता था, यीस्ट की काफ़ी चीज़ें थी. आप जो भी अपना जिस भी चीज़ में बनाना चाह रहे हैं, आटा जो मैदा शीरा मिलता है उसमें डाल के आप 10-15 मिनट रखते थे, वो स्वेल अप हो जाता हर चीज़. लेकिन ये चक्कर नहीं था कि आप उसमें चीनी डाल रहे हैं, यीस्ट. हाँ जी, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता आप हूँ. ये चीज़ जो है जी, मेरे ये ध्यान में बिल्कुल बहुत बिल्कुल जो ऐसा लेक्चर था हुआ ना, जो हमारा लेक्चर था बिल्कुल बेसिक है. इट्स एन इंट्रोडक्टरी. उन्हें कहते हैं इंस्टेंटली बेक्ड साशेस.
उसमें आपको रेसिपी बताई होगी कि आपने अगर 100 ग्राम फ्लोर ले रहे हैं उसमें ये साशे डालते हैं, क्योंकि आप वहाँ अकेले अपने इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप कम्युनिटी ज़्यादा तो साशे का क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आप 200 ग्राम का लेंगे आप 2 साशे डाल देंगे, आप 3 लेंगे तो 3 साशे डाल उन देंगे। साथियों का पाकिस्तान में क्या नाम है? यहाँ पर है इंस्टेंटली बेक्ड साशेज होते हैं। आप देखें जो उनको इम्पोर्टर्स हैं देर आर डिफरेंट, मिल जाते हैं। इवन जो आपके इम्पोर्टर्स हैं बड़े, वो अच्छी खासी क्वांटिटी में उसको मंगवाते होते हैं। इसमें एबी मॉरी जो है, एबी मॉरी एक हमारी जो मैक्सिमम जो हमें प्रोवाइड करी है, उसके अलावा लोकल इंटरप्राइजेज बहुत सारी है जो उसको प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन वो अगर आप क्वालिटी वाइज देखना चाहें तो वो फिर फ़र्क आता है। एबी मॉरी इज अप टू मार्क राइट नाउ, लेकिन इसके अलावा 2-3 कंपेटिटर्स भी और भी हैं ले सकते हैं। वो इंस्टेंटली बेक साशेज है। आप अगर लाहौर जाएँ तो आप केक्स एंड बेक्स पे जाएँ तो उन्होंने वहीं पे जो है ना आपको विदिन 5 or 10 मिनट्स में आपको पिज़्ज़ा भी दे देंगे, आपको बाकी चीज़ें दे देंगे, ब्रेड भी कहेंगे वो बना के दे देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि उन्होंने उसको हम इसे कहते हैं फूड साइंस के टर्म में मिनिमली प्रोसेस थिंग्स होती है, तो उन्होंने बनाई होती है कुछ चीज़ें, उसमें बस इंस्टेंटली चीज़ें डालते हैं, बेक करते हैं आपको। क्योंकि आप बातें कर रहे होते हैं, वो आपको एंगेज करने में टी वी लगाया उन्होंने, सर बैठ जाए प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, वो आपको एंगेज करके साथ ही आपको चीज़ें बैठे। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में अगर हमारी होगी सेकंड तो आपको जरूर डिस्कस करेंगे। सर क्वालिटी ये स्ट्रीम में कैसे मेंटेन आप सर ये प्री डिफाइंड है, ये सर्टिफाइड होते हैं और इन सर्टिफिकेशंस के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो उनको ऑडिट करने के बाद, स्टैंडर्ड्स मीट करने के बाद फिर अलाउ करती हैं मार्केट में। प्रोड्यूस तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं है, नहीं है, लेकिन आप ऐसे किसी भी चीज़ का आपने प्रोड्यूस लो किया क्वालिटी है और गैस आप बनेगी। सॉरी अगर क्वालिटी लो है इसकी तो जी, क्या जी। कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं साथ बनेगी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड हो सकती है। तो इसकी भी रेशो देखिए उसमें वो आपको जो रेसिपी है ना, आप मैंने आपको बताया कि वो जो आपको पैरामीटर है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सही से वो डिस्टर्ब अगर हो गया तो आपका एंड प्रोडक्ट कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने बीएस में एक दफ़ा हमें इसका लेक्चर मिल गया जी कि आप प्रैक्टिकल में करें जाके आप ब्रेड बनाएं, तो आप यकीन करें कि वो ब्रेड बनने के काबिल ही नहीं थी, क्योंकि हमें अनआइडेंटिफाइड में चीज़ें उसमें डाल दी। लेकिन जब 5, 7, 10 दफ़ा बनने के बाद विद असिस्टेंस ऑफ द लैब इंचार्ज वो हमने एक स्टेज पर आगे पा लिया, फिर हमें अप्रूवल मिला कि जी आप अगला लेक्चर करें। तो क्या शुगर और साल्ट की रेशो होती है इसमें क्या सर? सर आप उसकी रेसिपी के अकॉर्डिंग होता है, अच्छा अच्छा ठीक है। आपका अगर 100 ग्राम फ्लोर है तो आपका 30 ग्राम अगर आपका शुगर डालना है तो आपको उसमें 1 ग्राम के अकॉर्डिंग लेमन डालना है, लेकिन ये वेरिएबल है, सही से ये अकॉर्डिंग टू ये वेरिएबल है, ये इनके स्टैंडर्ड्स हैं, आप इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें स्टैंडर्ड्स। अब अगर आप यही अगर आप कुकीज़ बनाने लग जाएंगे तो वहाँ से यीस्ट हट जाएगा, वहाँ पे बेकिंग पाउडर आ जाएगा। सर आप ये रियाजमान में बेकरी का जो चीज़ें हैं इसको कैसे देखते हैं? ठीक है क्वालिटी वाइज या सर मैं तो खुद 11 साल बाद रहा हूँ, नहीं जब से आप जो जितने भी सारे मतलब वो बेहतर है, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अगर आप इनकी, मैंने इसलिए आपसे एक क्वेश्चन जो शुरू में पूछा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किचन में गए हों बेकिंग के, तो वहाँ अगर आप जाके देखेंगे आपने कहा यार हम ये खा रहे हैं, आप कभी उसको नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जो अच्छी बेकरीज हैं इसीलिए हम नहीं जाते फिर उसमें अगर आप उनसे जस्टिफाई, अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं करें तो आगे से जवाब देते हैं यार घर में भी तो ऐसे ही होता है, आपने कभी नहीं कुछ कहा वहाँ पे कुछ कहा, तो वो इस तरह से आर्ग्यू करना शुरू। लेकिन नाउ द स्टैंडर्ड्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग किसी भी फूड स्टफ के अकॉर्डिंगली, यू कैन ईजिली कॉल फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी। आप उन्हें टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, रजिस्टर करें अपनी वैलिड जो आपकी क्यूरी है। अगर आपकी वैलिड नहीं है तो दे कैन सू यू एज वेल। बच्चे बेकरी Local बड़े ना शौक से खाते हैं लोकल ना तो उनको कितना मतलब किस हद तक उनको परमिशन नीचे जाने की कितनी ये खानी चाहिए? जो बहुत- हमारा डायलेमा बन चुका है हाँ जी। कि हम लोग जो है ना बेकरी प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर चुके हैं। हमें बेसिकली अगर आप जितना नेचर से आप रहेंगे एसोसिएटेड, आप सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमने जो है ना वो होल व्हीट फ्लोर छोड़ दिया खाना, ये बहुत बड़ी रीज़न है। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फाइबर हमें दे रहा है जो हमारी जस्टिफाइबल नीड है हमारी बॉडी की, हम वो लेंगे। हमें और रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, लाइक इससे गोलगची का खाएं जी फाइबर हमें डाइजेशन नहीं सही होगी, और वो सिर्फ जो हमें फ्लोर से जो हमें मिला है ना, होल व्हीट फ्लोर से जो फाइबर मिल रहा है उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो अलाइड हंस हमें बेनिफिट्स देती हैं, लाइक उसमें ऐसे बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में डिजॉल्व होकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। सो देयर आर मैनी इंटरलिंकेजेस बिटवीन दीज थिंग्स, बट वी हैव टू मेक इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड बॉडी लेवल। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं जो विच इज़ नॉट जस्टिफाइड, कि जी कैल्शियम का हमें खिला दो जी, कैल्शियम इसको जितनी मर्जी, कितनी खिलानी है तो ये चीज़ें कीप माइंड करनी पड़ती हैं। आप उन्हें नेचुरल चीज़ें खिलाएं, हाँ जी, सर। महीने में 2 दफ़ा ठीक है, दैट्स फाइन। सर हम आपस में बैठे हैं, अगर आप कमेंट या सजेस्ट करें या कौन सी बेकरी बेहतर है? मैं ऐसे किसी को भी नहीं कह सकता कल ना वो अच्छी ना हो, आपने कहना नहीं साथ नहीं कह सकता।
बेटर आ रहे हैं, ये तो फायदा नहीं उसमें ये है कि आपको जो जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, हाँ जी। अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने इन PFA रूल्स 2014 में जो उन्होंने ये रेगुलेट कर दिया है कि देयर शुड बी एन ओपन किचन विजिट टू एनी ऑफ द कस्टमर। सही। आप जाएं, अब उनके आई वांट टू विजिट योर किचन, हाँ जी प्लीज, उनकी जाते हुए फिर उनकी जो कमेंट्स बुक में से जरूर लिखें, अच्छा है तो जरूर उनको अप्रिशिएट करें, बुरा है तो इस तरह से उनको मेंशन करें कि वो बुरा फील भी ना करें और नेक्स्ट टाइम आपको आने के दें। ये कुछ मतलब हम लोग मोस्टली जो है यहाँ से कभी पल से ले लिए, कभी जलंधर से ले लिए, बेक हाउस से खुला है वहाँ से भी ले लिए, तो आप चेंज करते रहें, अपना टेस्ट चेंज करें, आपको हो सकता है आपको मुफ्ती जो अच्छी चीज़ मिल जाए। सर टेस्ट अच्छा और जरूरी है, वो क्वालिटी भी अच्छी हो। फॉर एग्जांपल ये कैफे सजावट की खीर बड़ी मशहूर है, मैंने उधर टेस्ट नहीं किया, नहीं चलेंगे जरूर करें ये आपको करना लेकिन है। मेरे कुछ जो रिसोर्स पर्सन थे जिनसे मेरी बात हुई, जी जी प्लीज। लेकिन उसमें मैंने सुना है कि वो उसका टेस्ट डिवेलप करने के लिए ड्राई मैंगोस